Hello students, so I am Dr. Anurag Srivastav and we are meeting yet again for the subject of quantitative techniques for managers in MBA second semester of your curriculum. So, today we will be discussing about yet another model and that is game theory. As we have already seen, operations research which actually this subject consists of several different models, and these models are aimed at resolving different types of issues that an organization may face where quantitative data is required to be analyzed. So, whatever models we have seen till now, we have seen the decision theory, then we have talked about linear programming model, the transportation model and the assignment model. These models basically have been inward looking for the organization. Now, game theory is the first model that is outward looking. Game theory focuses upon competitive situations. Wherever there is a competition, when two different organizations, business organizations are competing with each other, two or more organizations obviously will be competing with each other. Those scenarios can be related to or can be likened to a game situation also, a game, a business as well as war. These three situations, these three different situations have one thing in common, that all three are competitive situations. So, a competitive situation implies that the gain of one party will be equal to the loss of another party. It will result in, maybe we can say, the loss of another party. May not always be, these two may not always be equal, but they will be related to each other. So, what are we going to do in such situations? Game theory focuses upon these aspects of business. Now, games can be between two persons also and more than two persons also. We will be focusing upon only two-person games, and then again games can be zero sum or non-zero sum games. Here we will be talking about zero sum games. So, first of all, to see what exactly are games. Game is a competitive model. In linear programming, we have been dealing with a situation known as internal conflict. So, we have till now we have studied about linear programming, transportation and assignment model. However, transportation and assignment model, these two are also related to linear programming only. So, basically we have, these are extensions of linear programming only. So, we have studied linear programming on the whole, we can say. There we were dealing with internal conflict. However, theory of games is a technique of dealing with external conflict. Now, we have players external to the organization also. There are a number of firms operating in an industry producing different brands of the product. The objective of each firm is to have the maximum slice of the market. Now, all these things are in game theory, but to begin with, let us just familiarize ourselves with a typical game by the name of Prisoner's Dilemma. Now, this game is depicted in the form of a, you can say, diagram in front of you, and let us just first of all try and understand what this game means. In any game, there will be at least two players, as we have already seen. So, here there are two different players, prisoner A and prisoner B. These two players are there. Now, what happened? Just let me just tell you about the background of this situation. See, two people were caught after some incident, some criminal incident took place at a place. The police caught two different suspects, and the police knew that these two people had committed the crime, but they did not have any proof. There was no proof. कोई proof इसका नहीं है कि इन दोनों ने crime किया है, कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये पता है हैं तो यही दोनों. तो कैसे आगे proceed कर सकते हैं? The only way is to make them confess, or at least one of them, if one of them confesses, तो फिर काम हो जाएगा और crime एक तरह से गवाही हो जाएगी और crime solve हो जाएगी. तो पुलिस ने क्या किया? दोनों को, as you can see in the diagram also, दोनों को अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया. Both were in solitary confinement and both were given an offer. पता है चोरी तो तुम्ही ने की है, तुम ही दोनों ने की है, अगर तुम कॉन्फेस कर लो, इफ़ यू कॉन्फेस, इंडिविजुअली ये ऑफ़र दिया जा रहा है दोनों को. तो पहले को कहा गया अगर तुम कॉन्फेस कर लो
तो ऑब्वियसली क्या सिचुएशन है, इफ़ यू कॉन्फेस एंड द अदर वन डज नॉट कॉन्फेस, तो तुम्हें हम सरकारी गवाह बना देंगे, उसको सज़ा हो जाएगी। अब ये क्राइम कौन सी थी, ये इससे ज़्यादा मतलब वैसे नहीं है कि 20 साल किसी चोरी के लिए तो सज़ा नहीं होगी, लेकिन मे बी इट वाज ऑफ सच अ ग्रेविटी कि 20 साल की सज़ा होने वाली है। तो अगर कॉन्फेस कर लिया तो उसको तो छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को 20 साल की सज़ा हो जाएगी। यही ऑफ़र दूसरे को दिया गया। अगर उसने कॉन्फेस कर लिया और दूसरा वाला जो प्रिजनर ए ने कॉन्फेस किया और प्रिजनर बी अगर कुछ नहीं करता है, कॉन्फेस नहीं करता है, दैट मीन्स रिमेन्स साइलेंट, तो फिर प्रिजनर ए छूट जाएगा और बी को 20 साल की सज़ा हो जाएगी। अब इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि अगर दोनों ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, अगर दोनों ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में कोई एडवांटेज अब फिर नहीं दिया जा सकता। एडवांटेज कब है? एडवांटेज केवल उस केस में है कि आपने कॉन्फेस किया, दूसरे ने कॉन्फेस नहीं किया, तब आपको एडवांटेज है, आप छूट जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ने कॉन्फेस कर लिया तो दोनों को 5-5 साल की सज़ा होगी। दिस इज़ द कैच नंबर 1। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि अगर दोनों ही कॉन्फेस नहीं करते हैं, अब क्या होगा? कोई गवाह है नहीं, कोई सबूत है नहीं, देयर इज़ नो प्रूफ, तो फिर उस केस में फिर भी 1-1 साल की सज़ा तो होगी ही। तो मिनिमम यही है। अब दोनों को जब ये ऑफ़र दिया गया, दोनों को जब ये ऑफ़र दिया जाएगा, अगर ऐसा होता है, नाउ व्हाट इज़ द डायलेमा हियर? द प्रिजनर्स डायलेमा। डायलेमा क्या है कि हम अगर कॉन्फेस करते हैं, तो 0 ईयर्स का तो ज़रूर है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन में भी ये है कि हम कॉन्फेस ना करें अगर ऐसा हो जाए। लेकिन उसमें ये मालूम है कि अगर हमारे साथी ने कॉन्फेस कर लिया, तो फिर तो हम 20 साल के लिए चले जाएंगे। हम कॉन्फेस नहीं कर रहे हैं, साथी ने कॉन्फेस कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों ने कॉन्फेस कर लिया तो दो बोथ आर वेल ऑफ। और ऐसा जब दोनों देखेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि बेस्ट चाहे जो भी हो, लेकिन दे बोथ विल बी कॉन्फेसिंग एंड दे बोथ विल बी इनसाइड प्रिजन फॉर 5 ईयर्स। तो गेम सिचुएशन की यही एक खूबी है, हम कह सकते हैं कि बेस्ट कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हो सकता है गेम का जो इक्विलिब्रियम है वो कहीं और आ जाए, जो कि दोनों के लिए ही बेस्ट नहीं है। और इसी को कहते हैं दिस इज़ द डायलेमा रिलेटेड टू अ गेम। तो दिस इज़ अ टिपिकल गेम विच वी नॉर्मली एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेम्स। अब इससे आगे थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। ये तो 2 प्लेयर गेम ज़रूर है, बट इट वॉज नॉट अ ज़ीरो सम गेम। हम लोग जो भी बात करेंगे वी विल टॉकिंग अबाउट बेसिकली ज़ीरो सम गेम्स ओनली। तो ज़ीरो सम गेम का मतलब क्या होता है वो भी आगे थोड़ा सा देखेंगे। गेम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें समझ लें। अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल गेम इज़ अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल अमंग n players for a common objective. For our purpose, we will be talking only about 2 players. In an ordinary game, 2 teams are pitted against one another. Both employ different strategies to achieve their objective. However, in business settings, there may be more than 2 firms also. The objective of a game is to win without cheating. Obviously, we are talking about fair games. We are not talking about games which involve cheating. Certain characteristics will be there except for those actually जो थोड़ा सा तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा there are certain more characteristics of games. There will always be a finite number of participants. Infinite number of participants नहीं हो सकते हैं कि limitless हैं, कितने participants हैं नहीं पता। नॉर्मली तो हम लोग तो कवर करेंगे 2 पर्सन गेम को ही। वैसे 2 से अगर ज़्यादा भी हैं तो भी ये नोन होगा, सारे पार्टिसिपेंट्स को पता होगा कि 2 हैं कि 10 हैं कि 15 हैं, जितने भी हैं इट विल बी नोन। ये नहीं हो सकता है कि बताया गया 15 है और एक 16वां और निकल आया। तो लाइक एनी गेम, कोई भी गेम हो या कोई 2 साइडेड गेम हो या कोई टूर्नामेंट हो, इसमें पहले से डिसाइडेड होगा कि कितनी टीम्स यहाँ खेल रही हैं। ईच पार्टिसिपेंट हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज अवेलेबल। तो हर पार्टिसिपेंट के पास कितनी स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, व्हाट कोर्सेज ऑफ एक्शन आर अवेलेबल टू दैट पार्टिसिपेंट और द टीम, ये हमेशा फाइनाइट होगा। ये इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट नहीं हो सकता है। अनलिमिटेड स्ट्रेटजीज, अनलिमिटेड ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल। ये नहीं हो सकता है कि हम कुछ 4 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं और उसके बाद फिर उसमें 2 प्लेयर्स हमने बाहर से और कहीं से बुला लिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनाइट ही होंगे और वो भी दूसरे प्लेयर को पता होगा। ईच प्लेयर नोज द स्ट्रेटजीज अवेलेबल टू द एडवर्सरी, but what he does not know, he or she does not know, he does not know which strategy will the adversary adopt.
तो अगर दो प्लेयर्स हैं सपोज ए एंड बी, ए के पास 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, बी के पास 4 स्ट्रेटजीज़ हैं, जितनी भी हैं दोनों के पास बराबर स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, दोनों के पास अनइक्वल नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज़ भी हो सकती हैं। दोनों को पहली बात तो पता होगा कि अपोजिशन के पास कितनी स्ट्रेटजीज़ हैं। पता ये नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट करने जा रहा है। तो ये दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गेम, एंड देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर कैलकुलेबल। सो इफ ए हैज़ 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बी हैज़ 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज, तो ए पहली स्ट्रेटजी चूज करेगा और बी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चूज करेगा, तो उसमें आउटकम क्या निकलेगा, दैट मीन्स यू कैन सी द पे ऑफ इज कैलकुलेबल एंड नोन बिफोर हैंड टू बोथ प्लेयर्स। दे बोथ नो कि ए अगर हमारा अपोजिशन ऐसा करता है और हम कुछ करेंगे तो उसका आउटकम क्या निकलेगा। पता ऑब्वियसली ये नहीं है, जो पहले बात हो चुकी है कि अपोजिशन करेगा क्या, ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए आउटकम सर्टेनिटी के साथ तो नहीं पता चल सकता है। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम। सर्टेन टर्म्स आर देयर दैट विल बी यूजिंग इन गेम थ्योरी। तो स्ट्रेटजी की बात तो थोड़ी सी हम लोगों ने कर ली। स्ट्रेटजी इज अ डिसीजन रूल बाय विच अ प्लेयर चूजेज हिज और हर कोर्स ऑफ एक्शन। तो अलग अलग जितने भी उसके पास कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं, वो उसके लिए स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। तो अ प्लेयर मे बी एनी नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, ऑब्वियसली एज वी ऑलरेडी सीन, दिस मस्ट बी finite, it cannot be infinite, and the number of strategies and actual strategies available to one particular player will be known to his or her opponent also. Now, when a player spends all his time or resources on one particular course of action only, he is said to have employed a pure strategy. अब प्लेयर के ऊपर इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज तो नॉर्मली होंगी ही, तो 2, 3, 4 कितनी भी स्ट्रेटजीज अगर उसके पास हैं, तो ये उसके ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द गेम, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पे ऑफ्स, डिपेंडिंग अपॉन द अपोजिशन स्ट्रेटजीज ऑल्सो, ये उसके ऊपर होगा कि वो केवल हमेशा को ये डिसाइड कर ले कि मैं इन 3 स्ट्रेटजीज हैं 1, 2, 3, इसमें से 3 नंबर की ही हमेशा चूज़ करूँगा, या फिर वो ये कहे कि अगर मुझे 10 बार ये गेम खेलना है तो 2 बार मैं पर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चूज़ करूँगा, 4 बार दूसरी कोई स्ट्रेटजी चूज़ करूँगा और 4 बार कोई तीसरी स्ट्रेटजी चूज़ करूँगा। तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है। अगर ये डिसाइडेड है, ये कैसे डिसाइड होगा इस पर हम लोग आगे आएंगे ही, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द गेम इट विल गेट डिसाइडेड ऑब्वियसली कि कौन सी स्ट्रेटजी या क्या सिंगल स्ट्रेटजी चूज़ कर रहा है या एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी चूज़ कर रहा है। तो अगर एक सिंगल स्ट्रेटजी ही हर बार चूज़ कर रहा है तो वो हो जाएगा, दैट गेम विल बी नोन एज अ प्योर स्ट्रेटजी गेम। बोथ द प्लेयर्स, इन फैक्ट नॉट ओनली वन प्लेयर ओनली, सो बोथ प्लेयर्स whenever the game is played, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा हो गया कि वो वही स्ट्रेटजी चूज़ कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रिजनर्स डायलेमा के केस में देखा, तो अगर उस गेम को बार बार खेला जाएगा तो दोनों प्लेयर्स, इवन इफ दोनों को चुप रहने से ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन दोनों कॉन्फेस करेंगे और वही स्ट्रेटजी हमेशा दोनों अडॉप्ट करेंगे। तो दोनों के पास दो स्ट्रेटजी हैं, कॉन्फेस या नॉट टू कॉन्फेस, और दोनों के लिए जो प्योर स्ट्रेटजी होगी वो होगी to confess. Both will always be confessing and therefore that game was a pure strategy game. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, गेम एक जगह पर उसको वो इक्विलिब्रियम या स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो वो होगा एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम। सो व्हेन अ प्लेयर स्पेंड्स हिज टाइम और रिसोर्सेज ऑन एट लीस्ट 2 और more courses of action, he or she is said to have employed a mixed strategy. तो गेम भी उसी हिसाब से हो जाएगा। तो जहाँ पर अगर दोनों के दोनों प्लेयर्स प्योर स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्लेयर्स ने एक एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर ली है और वही हमेशा सेलेक्ट कर रहे हैं, वही हमेशा यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्योर स्ट्रेटजी गेम। अगर दोनों के पास दो अलग अलग स्ट्रेटजी, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं और वो कभी कोई स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं, तो सच अ गेम इज़ नोन एज अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम। देन अगेन, the outcome which is quantified when players adopt a specific course of action is a payoff. So one player adopts a particular course of action, the another player adopts a particular course of action or selects a particular strategy. Corresponding to these two, a particular payoff element will be associated.
तो ये हम लोग एक्चुअली एक पे ऑफ मैट्रिक्स, जैसे डिसीजन थ्योरी में एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनानी होगी और बनेगी, बन के सामने आएगी। डिसीजन थ्योरी में क्या था, जो दो अलग अलग जो दो एक्सेस थे, जो डायमेंशंस थे उस मैट्रिक्स या टेबल के, एक था अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन और दूसरा था द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा कि जो स्टेट्स ऑफ नेचर की जगह दूसरा प्लेयर आ गया एक तरह से। तो वही बात हुई, बात तो वही हुई कि हम खुद जो कर रहे हैं वो हमारे अपना कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, जो अपोजिशन हमारा कर रहा है वो एक तरह से स्टेट ऑफ नेचर हो गया। स्टेट ऑफ नेचर इज़ दैट particular aspect of the problem which is beyond our control. So, the opposition, whatever the opposition is doing, that also is beyond our control. तो ये दोनों डायमेंशंस यहाँ पर होंगे। प्लेयर ए, अभी जो गेम में देखा था वैसे ही कुछ गेम बनेगा, तो प्लेयर ए और प्लेयर बी, और उन दोनों के बीच में अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के लिए जो अलग अलग वैल्यूज़ जो आएंगी, आ सकती हैं, दोज आर द पे ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अ पे ऑफ मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाई all these payoff elements. Again, this payoff matrix will have the same type of appearance as the payoff matrix in case of a decision theory problem also. Decision theory में जो हम लोग decision making under risk और decision making under uncertainty के केस में जो चीज़ें देख रहे थे, वो जो payoff matrix या payoff table देख रहे थे, उसी तरह की payoff matrix यहाँ पर भी मिलेगी। अगेन द डिफरेंस वही है, डिफरेंस उसमें वही है जैसा कि पहले अभी मैंने बताया आपको कि वहाँ पे दो डायमेंशंस थे, स्टेट्स ऑफ नेचर और कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे दो डायमेंशंस होंगे, एक पहला प्लेयर और दूसरा प्लेयर। द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ द एवरेज विनिंग ऑफ अ प्लेयर पर प्ले ओवर अ सीरीज ऑफ गेम्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ गेम इज़ इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द गेम। तो यही हमें एक्चुअली जो टिपिकल एक प्रॉब्लम गेम की मिलेगी, गेम थ्योरी की जो टिपिकल प्रॉब्लम मिलेगी, तो उसमें हमसे यही पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा? दो तरह के गेम्स हो सकते हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं। प्योर स्ट्रेटजी गेम हो सकते हैं या मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम हो सकते हैं। तो प्योर स्ट्रेटजी गेम अगर है तो उस केस में गेम की वैल्यू क्या होगी? जब हमने ये देखा कि हमेशा प्लेयर ए एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चूज़ कर रहा है और हमेशा प्लेयर बी भी एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चूज़ कर रहा है, उस केस में वो कौन सा पे ऑफ एलिमेंट है जो हर बार गेम का आउटकम बता रहा है, वो पे ऑफ एलिमेंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द गेम। वही पे ऑफ एलिमेंट गेम की वैल्यू हो जाएगा। कभी ऐसा लेकिन जब हो सकता है कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम्स अगर प्ले किए जा रहे हैं तो ये डिसाइडेड नहीं है, कोई एक सिंगल स्ट्रेटजी डिसाइडेड नहीं है प्लेयर ए के लिए, या कोई सिंगल स्ट्रेटजी डिसाइडेड नहीं है प्लेयर बी के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि जो विनिंग्स हैं वो हर बार चेंज हो सकती हैं। कभी कोई वैल्यू आएगी, कभी दूसरी आएगी, कभी कोई पे ऑफ एलिमेंट आएगा, कभी कोई दूसरा आएगा। तो इफ़ इट इज़ दिस गेम इज़ प्लेड ओ सेवरल टाइम्स, कई बार ये गेम अगर खेला जाता है, तो एवरेज विनिंग्स या लूजिंग्स दोनों प्लेयर्स की कितनी होंगी, वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ द गेम। नाउ द बेसिक थिंग दैट वी जो जिस तरह का गेम हम लोग के सिलेबस में एक्चुअली है, गेम्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड द डिपेंडिंग अपॉन द सम ऑफ द गेम, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एक्चुअली। तो एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम, या हो सकता है देयर कैन बी एन पर्सन गेम हो सकता है और 2 पर्सन गेम हो सकता है। तो एक क्लासिफिकेशन तो हो गया डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्लेयर्स, देयर कैन बी 2 प्लेयर्स एंड देयर कैन बी मोर देन 2 प्लेयर्स। एन वैसे तो 2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गेम थ्योरी के केस में हम लोग एन को मान रहे हैं 2 से ज़्यादा। तो या तो 2 लोग खेल रहे होंगे या 2 से ज़्यादा लोग खेल रहे होंगे। दूसरा कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? डिपेंडिंग अपॉन दी सम ऑफ द गेम। तो इट कैन बी अ ज़ीरो सम गेम, इट कैन बी अ ज़ीरो सम गेम, और इट कैन बी अ नॉन ज़ीरो सम गेम। तो सम गेम का क्या है? ये एन पर्सन और 2 पर्सन तो समझना आसान है, सम का मतलब क्या है? तो ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम का मतलब है इफ़ द सम ऑफ winnings and losings, the algebraic sum of the winnings and losings of all the players is equal to 0. स्लाइड पे भी लिखा हुआ, the algebraic sum of the gains and losses of all the players is equal to 0.
that is the gain of one player. If there are only two players, the gain of one player is equal to the loss of another. तो क्या हुआ कि दो प्लेयर्स हैं और दोनों ने आपस में एक शर्त लगाई कुछ, तो 10-10 रुपये की शर्त लगा रहे हैं, 10-10 रुपये दोनों ने पूल किए, जो जीतेगा वो 20 रुपये उसको मिल जाएंगे। तो जिसने जीती शर्त उसको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, जिसने शर्त हारी उसको 10 रुपये का नुकसान हुआ। ये हो गया ज़ीरो सम गेम। दिस सिंपली इज़ अ ज़ीरो सम गेम। लेकिन जो गेम अभी हम लोगों ने देखा था, जो एग्जाम्पल देखा था प्रिजनर्स डायलेमा वाला, वैसे तो वो सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन इट वाज अ नॉन ज़ीरो सम गेम, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली बराबर नहीं था। ऐसा नहीं हो रहा था कि एक को अगर इतने साल की सज़ा हो रही तो दूसरे उतने ही साल के लिए बाहर जा रहा है, तो वो नॉन ज़ीरो सम गेम है। इसी तरह से मान लीजिए कि शर्त की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई एक लॉटरी है, तो लॉटरी में क्या होगा कि कई सारे लोग टिकट्स खरीदेंगे और उसमें से कुछ एक पोर्शन तो जो है जो लॉटरी ऑर्गेनाइज़र उसके पास चला जाएगा, और जो टोटल पूलिंग है टोटल अमाउंट की, उससे कम प्राइस एक्चुअली मिलेगा जिसने भी जीता। तो वो भी एक नॉन ज़ीरो सम गेम है। तो नॉन ज़ीरो सम गेम्स कई सारे होते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा द कैलकुलेशन में बी मोर डिफ़िकल्ट। सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हमारे सिलेबस में केवल ज़ीरो सम गेम्स हैं, समझने में भी आसान है। तो इसका मतलब है 4 तरह के गेम्स हो सकते हैं। n पर्सन ज़ीरो सम गेम हो सकता है, n पर्सन नॉन ज़ीरो सम गेम हो सकता है, 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम हो सकता है, और 2 पर्सन नॉन ज़ीरो सम गेम हो सकता है। इस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे 4 तरह के गेम्स हो सकते हैं। वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम्स वेयर the algebraic sum of the gains and losses of all the players, both the players obviously in this case, is equal to 0. The gain of one player will be equal to the loss of the other player. यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है ऐसे एक गेम का, तो कई तरीके से हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। तो द गेम इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, अभी बताया था आपको। तो ये एक पे ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो डिपिक्ट किया जा रही, दिस इज़ अ पे ऑफ मैट्रिक्स। ये दो प्लेयर्स हैं ए एंड बी। ए इज़ द रो प्लेयर, बी इज़ द कॉलम प्लेयर। रो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेटजीज अवेलेबल टू ए। तो ए के पास 3 स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, A1, A2, A3। कॉलम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेटजीज अवेलेबल टू बी। बी के पास इसमें 4 स्ट्रेटजीज हैं, B1, B2, B3, B4। इसलिए ख़ासतौर पर मैंने इस तरह का गेम लिया है। ये ध्यान रहे कि दोनों के पास बराबर स्ट्रेटजीज हैं हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि रो प्लेयर के पास कम स्ट्रेटजीज होंगी। रो प्लेयर के पास भी कितनी भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, कॉलम प्लेयर के पास भी कितनी भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ए को हमें इधर ही लिखना है, बी को ऊपर ही लिखना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। एनी प्लेयर कैन बी डिपिक्टेड एज ए रो प्लेयर, द अदर प्लेयर कैन बी डिपिक्टेड एज द कॉलम प्लेयर। तो किसी के पास भी कितनी भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ज़रूरी चीज़ ये है कि ये मालूम है दोनों प्लेयर्स को कि कितनी स्ट्रेटजीज दूसरे के पास हैं। पॉजिटिव पे ऑफ एलिमेंट्स मीन गेन टू ए। ये जो गेम है हमेशा ए या रो प्लेयर के लिए पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर ए की जगह हम रो प्लेयर पढ़ सकते हैं, ये हमेशा रो प्लेयर के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर 60 है तो इसका मतलब है ए को 60 का फ़ायदा है, और 60 का फ़ायदा है, ज़ीरो सम गेम है, इसका मतलब बी को 60 का ही नुकसान है। यहाँ पे -30 मीन्स ए को 30 का नुकसान है, और इसका मतलब है बी को 30 का फ़ायदा हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स डिपिक्ट कर रहे हैं। और मतलब भी क्या है, अगर यहाँ -150 है तो ए अगर A1 एडॉप्ट करेगा स्ट्रेटजी और बी अगर B3 स्ट्रेटजी एडॉप्ट करेगा तो -150 आउटकम या पे ऑफ होगा। 150 का नुकसान ए को, 150 का फ़ायदा बी को। So positive payoff elements mean gain to A, negative payoff elements mean loss to A. The game is played on the assumption that both players are conservative. वो हारना नहीं चाहते हैं और लॉस मिनिमाइज करना चाहते हैं। The objective of A is to ensure for himself a minimum gain which cannot be reduced by whatever B does, and the objective of B is to ensure that he does not lose more than a particular amount. तो ये इसको हम लोग स्ट्रेटजीज़ के टर्म्स में बोलते हैं। ए और बी की जो स्ट्रेटजीज़ होंगी, और इसके बेसिस पर आगे हम लोग गेम को सॉल्व भी करेंगे आगे के सेशंस में। ए की जो स्ट्रेटजी है वो मैक्सिमिन हमेशा बोली जाती है, मैक्सिमम ऑफ द रो मिनिमा, एंड स्ट्रेटजी ऑफ बी इज़ ऑलवेज मिनिमैक्स विच इज़ नोन एज मिनिमम ऑफ द कॉलम मैक्सिमा। इसके बेसिस पर दोनों चूज़ करते हैं अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़। तो ए जो है मैक्सिमिन का मतलब क्या है? मैक्सिमिन का मतलब है कि वो ये देखता है कि अगर हम स्ट्रेटजी A1 सेलेक्ट करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, कम से कम हमको क्या मिलेगा।
या कितना नुकसान हो सकता है। तो मिनिमम जो है वो ये हो गया -150। इसी तरह से अगर हम A2 करेंगे तो मिनिमम क्या होगा, B2 A3 करेंगे तो मिनिमम क्या होगा, और उसमें से मैक्सिमम क्या है, तो दैट इज मैक्सी मिन। और B उसका उल्टा करेगा, वो मिनी मैक्स करेगा। क्या करेगा, एक कॉलम में देखेगा, अगर हम B करेंगे, अगर हम B1 करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है, इतना। अगर B2 करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, और इसमें से मिनिमम क्या है, तो वो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी चूज़ करता है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से एक्चुअली हम लोग गेम्स को सॉल्व करते हैं और गेम्स की वैल्यू निकालते हैं। विल मीट अगेन फॉर दिस एंड कंटिन्यू विद इट। थैंक यू।